Hello guys and welcome to my YouTube channel Anjali Zero Guide and I am Anjali here. So I am vlogging from Goa. Let's explore the Goa together. It's almost 4 p.m. and we just checked in our hotel before 1 to 2 hour and had our lunch and अभी बस जा रहे हैं to explore the Goa. So आज तो half day जैसा ही है. So let's see how it goes and especially I want to experience how it goes with baby because it's her first time. So yeah, let's go and let's explore the Goa. So right now we are going to Chapora Fort and then maybe Baga Beach. Let's see. I guess Chapora Fort बंद हो जाएगा, हम पहुंचेंगे तब तक. But let's see. So Chapora Fort तो बंद हो गया था. So here we are at Baga Beach, right? So here we are at the famous Artichoke Cafe for the dinner. Oh, so cool. Jesus. The vibe here is quite good and we ordered Elio Olio iced coffee. Okay. So we are back to the hotel and end of the day one. So far it is quite good. Hello, good morning. It's the next day. So right now just we are having our breakfast at the hotel and then we're gonna start the day. So we are all ready to explore and start the day. So are you excited for the day? So let's. So first of all जो कल छूट गया था चपोरा फोर्ट उधर जाएंगे, उसके बाद दूसरा जगह पे जाएंगे. ठीक है, लेट्स गो. बहुत चलना है अभी तो ऊपर तक. बहुत रीच्ड एट चपोरा फोर्ट बट बहुत ही अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है एंड विथ हर इज क्वाइट डिफिकल्ट बट वी स्टिल गोना डू. लेट्स गो. वी हैव टू रीच देयर. द व्यू फ्रॉम हियर इज इनसेन. Now we are here at some cafe to have lunch. और चपोरा फोर्ट हो गया, उसके बाद हम पारा रोड गए थे एंड अभी लंच के बाद हम जाएंगे अगोड़ा फोर्ट एंड देन देखते हैं क्या करेंगे. We ordered पाव भाजी एंड डोसा for the lunch. Guys, this is the view from Agoda Fort. It's insane. मतलब it's so breathtaking views. This is basically Agoda Fort. Oh guys, and you look thak gaye बैठे. Look at the light. So after the Agoda Fort, we are here at Cinquarium Beach, जहाँ पे like lower Agoda Fort भी है and beach दोनों साथ में है and बस अभी इधर बैठे हैं, कुछ भूख लगी, खाना ऑर्डर करेंगे and enjoying the view. Let me show you the view. So this is the view from the cafe. Hello guys, so it is the third day and we are all ready to explore again. आज थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि कल बहुत थक गए थे चल के, अभी इतना पेट दर्द कर रहे हैं तो सो रहे थे, उठ नहीं पाए. दैट्स वाई एंड या लेट हुआ है बट डोंट वरी, विल गोना कवर एवरीथिंग टुडे. So yeah, and everyone is ready. Hi. The only excited person in this trip is Jisha. उससे ज़्यादा कोई excited नहीं, ना तो उसको चलना पड़ रहा है, ना तो कुछ करना पड़ रहा है, ना तो गाड़ी चलानी पड़ रही है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है. Just sit back and relax. She is the only one who is enjoying the most. So yeah, let's start the day. So guys, आते आते थोड़ा इशू हो गया था, गाड़ी में पंचर हो गया था तो वो ठीक करवाया and then now here we are at Vagator Beach. I hope I'm pronouncing it right. So yeah, बहुत लेट हो गया पंचर की वजह से बट ठीक है. ये लोग थक गए देखो, जबकि गाड़ी मैंने चलाया और थक ये लोग गए पीछे बैठ के. वाव, व्हाट? हाँ, अच्छा, रिलैक्स करने की वजह से ही हर रोज को एक एक दो प्लेस छूट ही जा रहे हैं. ठीक है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बार आ जाएंगे. प्लेसेस छूटेंगे तो दूसरी बार आएंगे, वरना कैसे आ पाएंगे. ठीक है.
also did a little bit of shopping बीच में street Turn right. and अभी हम next जा रहे हैं Fontanias that is known for like colorful houses like पूरा Portuguese street हाँ Portuguese street style है the good place to click photos also so let's go so we have reached to Fontanias like इधर ऐसा ही है मतलब जो streets है और जो locals है उनके घर है and everything is so colorful and so beautiful. Look at the view. So हमने घूम लिया है फोन्टेनियस वाला लेन पूरा है वो सिर्फ एक ही लेन बट यहाँ पे तो बहुत जगह पे ना फोटोज खींचने के लिए मना करते हैं मतलब सब लोग के घर है ना तो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी सब घर के बाहर लिखा है नो फोटोज जहाँ पे अलाउड था वहाँ पे लिया और बस अभी 3 बज गए तो क्या लंच ही कर ले तो अभी और सबसे बिगेस्ट टास्क बताए क्या है इसको हर जगह पे खिलाना क्योंकि भाई साहब इतना तबाही मचानी है सब जगह पे जो चाहिए वो सब हाथ में लेना है और प्लस इसको इसके टाइम पे भी खिलाना आज थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज रास्ता बहुत लंबा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक था दैट्स व्हाई पहला भी जीशा का खाना होगा उसके बाद हमारा डेफिनेटली So guys, we done with the lunch and now heading towards the Dona Pola point, which is also known as like Singham Point. So we have reached at Dona Pola or Singham Point. It's literally beautiful, but यहाँ पे इन्होंने एंट्री फी लगा के रखी है 50 रुपया और बाहर मार्केट भी है बहुत बड़ा सा. This is the point जहाँ पे सिंघम का शूटिंग हुआ. Look at the view guys. The cloud here is so clear like in general बहुत एकदम clear skies मिलेंगे आपको जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक पानी ही पानी. View from this point is like सभी जगह से अलग अलग और इतने अच्छे हैं क्या बताऊँ. Look at this. So heading towards the last point of the day is Kalangat beach and फिर उधर से होटल एंड डिनर करके डे ख़त्म करेंगे एंड टुडे इज़ ऑल्सो द लास्ट डे एट नॉर्थ गोवा. कल हम जाएंगे साउथ गोवा एंड देन नेक्स्ट 3 to 4 days विल गोना एक्सप्लोर द साउथ गोवा. सो फाइनली आफ्टर 1 hour ड्राइव करने के बाद वी आर हियर एट कैलंगट बीच एंड ऑलरेडी सनसेट हो चुका है बट द बीच इज सो लाइव लाइक लिटरली यहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट में डांसिंग वांसिंग चल रहा है एंड डीजे चल रहा है. यू कैन क्लियरली हियर दैट. यहाँ पीछे सब रेस्टोरेंट्स हैं गाने वाले चल रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है. Hello, it's the last day here and we supposed to go to the swimming pool but पानी इतना ठंडा है और ठंडी भी लग रही है so we are cancelling the plan और अभी ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर फिर चेकआउट कर देंगे. Let me show you the property. जीशा को भी लेके जाने वाले थे उसका रिंग लेके आए थे बट बहुत ही ठंडा है पानी तो कोई रिस्क नहीं लेना है क्योंकि अभी और 4-5 दिन है ना जीशा. हेलो गाइस सो वी हैव रीच्ड टू लाइक साउथ गोवा और होटल में चेक इन भी कर लिया बट जो टाइम था ना उससे बहुत लेट पहुंचे हम क्योंकि बहुत सारा भसड़ मच गया था. उधर से कैब बुक कर रहे थे बट कैब बुक ही नहीं हो रहा था और बुक होने के बाद ड्राइवर है वो आ ही नहीं रहा था. ना तो कोई कस्टमर केयर में कॉल उठा रहा था ना तो ड्राइवर कॉल उठा रहा था एंड वो सब चल रहा था. फिर बहुत देर वेट किया फिर उसके बाद भी ड्राइवर तो आया ही नहीं. फिर हमने ऑफलाइन जिसके पास से स्कूटी लिया था उससे जुगाड़ करवा के कैब किया. थोड़ा कॉस्टली पड़ा ऑनलाइन से बट ठीक है अभी एंड आधा 1 घंटा लेट चल रहे बट इट्स ओके. अभी कैब मिला ही नहीं तो क्या करें. सो वी हैव जस्ट चेक्ड इनटू द होटल एंड अभी बस लंच करेंगे. लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर. ये रूम के बाहर का व्यू है. लुक एट द ब्यूटीफुल इतना बड़ा लॉबी. The view is so good from here like so we booked the fun. This is our room. Enter होते ही इधर bathroom and
the wardrobe है and this is the overview of the room. काफी decent और अच्छा है. इधर गैलरी भी अच्छा है, अच्छा खासा गैलरी भी है, बट इधर से और कोई व्यू तो नहीं है. जस्ट ग्रीनरी एवरीवेयर एंड द फुल लेंथ मिरर. दैट इज द बेस्ट थिंग. पिछले वाले होटल में नहीं था, छोटा सा ही मिरर था. और यहाँ पे मेन्यू डिसाइड हो रहा है एंड जीसा ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है, सारी चीज़ें लेके तोड़ फोड़ के. सो वी आर जस्ट डूइंग होटल का टूर हियर. स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं. क्वाइट अ बिग वन. भाई ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा नहीं है. Okay, so little bit story time from a weird angle. 5 बज गए but still we are not went anywhere क्योंकि बहुत सारी बसड़ मची एक साथ. खाने का सर्विस इन लोग का अच्छा नहीं था तो आधा खाया, उसके बाद रोटी के लिए 15-20 मिनट वेट करना पड़ा. पता नहीं अंदर अंदर क्या ही ये लोग कर रहे थे. तो एक रोटी आया, उसके बाद 15-20 मिनट तक वेट किया, फिर दूसरा रोटी लेके आए, फिर कंप्लेन किया इन लोग का कि ऐसा वैसा कर रहे हैं. फिर बिल में भी, खाने के बिल में भी कुछ मतलब 18% GST लगा दिया था. तो फिर वो भी थोड़ा झगड़ा किया विरल ने. 5% होता है क्यों 18% क्या. फिर कुछ तो रूल्स बताने लगे, उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ बात करवाई और वो सब. देन हमने काउंटर चेक किया कि ये जो रूल बता रहे हैं वो एक्चुअली लाइक एग्जिस्ट करते भी है या नहीं, ऑथेंटिक है या भी नहीं. बट वी विल चेक. तो पता चला कि समवेयर दे आर राइट. जीशा भी सो रही थी, उठ गई. एंड यार ये सब भसड़ हुआ. उसके बाद स्कूटी का हुआ कि हमें नहीं पता था कि होटल हमारा इतना ऑफ एरिया में है कि आजू बाजू में कहीं पे स्कूटी पे भी रेंट में नहीं मिलेगा. मतलब 3-4 लोगों को कांटेक्ट किया बट दे वर लाइक कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे हम देने नहीं आएंगे स्कूटी. आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे आके लेके जाओ. तो वो भी कैसे कैसे करके सॉर्ट किया. और अभी लाइक विरल गए हैं उनके वहाँ पे स्कूटी लेने के लिए. और गोवा मेल्स का भी अलग ही लफड़ा है कि ड्राइवर मिल तो जाता है आपको पर वो ड्राइवर कॉल नहीं उठाता, जल्दी से आता नहीं है. ये सब हुआ. अभी इधर से विरल गए हैं कोई तो लोकल यहाँ का बस है उसमें से जहाँ पे उनका स्कूटी वाले का था, उधर स्कूटी लेने. अभी स्कूटी लेके आएंगे और ज़्यादा टाइम तो नहीं है अभी घूमने के लिए कॉज ऑलरेडी रात हो गई है. और रात में कहीं बीच में जाने में उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि पूरा डार्क होता है और थोड़ा डरावना भी मुझे तो लगा. तो रात में कोई मतलब नहीं है बीच में जाने का. सो वी थॉट कि हम हमारा जो डिनर क्रूज बाकी रह गया था ना, जो हम नॉर्थ साइड थे तब जाने वाले थे बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग सूट नहीं हुआ और उधर से बहुत दूर भी पड़ रहा था इसलिए. बट इधर से हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से अभी 20 to 25 मिनट्स ही है. सो वी वर लाइक कि पूरा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ सारी भसड़ मची. तो अभी जब स्कूटी आ जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे. 6 बजे तक स्कूटी तो आ ही जाएगा. तो डिनर क्रूज तो आई गेस 8 बजे के आसपास कुछ शुरू होता है तो उधर तो जा ही सकते हैं. 8-8:30 बजे शुरू होता है तो यहीं से नज़दीक ही है. तो रात में भी लेट हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द प्लान एज ऑफ नाउ कि स्कूटी आने के बाद हम डिनर क्रूज जाएंगे. लेट्स सी एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, या फिर पूरा दिन वेस्ट होता है. विल अपडेट यू लाइक कि क्या होता है क्या नहीं. Hello guys, good morning. So कल finally we made it to the not a dinner cruise but हमने casino cruise में जाने का चूज किया rather than going to the dinner cruise. So yeah, हम dinner cruise की वजह casino cruise में गए थे and I guess that was the best decision we made क्योंकि यहाँ आके casino वसीनो नहीं देखा तो क्या ही देखा, राइट. So वो एक जगह कर पाए बट वर्थ है. तीनों का फ्लोर था, उसमें बेबीज अलाउड नहीं थे तो बारी बारी गए थे हम. एंड डिनर भी बहुत अच्छा था. और कसिनो वाले फ्लोर पे और कई जगह पे ना वीडियोस और वो सब अलाउड नहीं थे, सिर्फ रेस्टोरेंट में थे. तो जैसे आपने देखा मैंने उतना ही लिया, सिर्फ रेस्टोरेंट का ही. बहुत ही लाइव म्यूज़िक, डांस वो सब हो रहा था. तो लाइक बहुत मज़ा आया. ओवरऑल अच्छा नहीं गया था बट एटलीस्ट वी डिड समथिंग एट द इवनिंग. इंडिया देखते ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ जाते हैं क्या करते हैं क्योंकि साउथ गोवा में ना सारी चीज़ें बहुत ही दूर, बहुत ही मतलब डिस्टेंस पर है. तो वी हैव टू फिगर आउट. तो नज़दीक का है, आई मीन एक प्लेस से दूसरा प्लेस नज़दीक है वैसे. सो या दैट्स इट, जस्ट गोना हैव ब्रेकफास्ट. हेलो, सो वी आर रेडी फॉर द डे. और आज भी लेट हो गया बिकॉज ऑफ जीसा रो रही थी और उसको सोना था. ऑलरेडी सो रही है बट स्टिल वी गोना गो.
बिकॉज ऑलरेडी इट्स 11:30, हमें 10 बजे निकलना था और ये रो रही थी तो 11:30 बज गए। दैट इज़ ओके। देखते हैं अभी। नॉर्थ गोवा में बहुत लाइक हेक्टिक हो गया था, सब जगह जाना है, बट वी डिसाइड कि इधर हम थोड़ा रिलैक्स रखेंगे। एक दो जगह ना भी घूम पाए तो कोई नहीं, ठीक है, बट गोना रिलैक्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट द डे। एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइक होटल में अच्छा लाइक बहुत अच्छा क्रिसमस का डेकोरेशन भी इन्होंने करके रखा है। लेट मी शो यू एवरीवेयर क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। सो वी हैव मेड इट टू द फर्स्ट प्लेस कोलवा बीच। एंड इधर साउथ गोवा के बीच कितने मतलब एकदम रिलैक्सिंग और बहुत ही शांत है। इतने दिनों से हर रोज कितने सारे बीच पे जा रहे हैं, बट फिर भी पता नहीं हर रोज सब अलग अलग बीच पे जाके कुछ ना कुछ नया दिखने को मिलता है और हर जगह मतलब रिलैक्सिंग फील होता है। हेलो गाइस, सो वी हैव रीच्ड द नेक्स्ट बीच, इट्स बेनोलिम बीच। और इस इधर ना मतलब एंट्री कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट और उसके अंदर से है, मतलब नॉट सो, बट बीच के आगे रेस्टोरेंट्स बने हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से एंट्री है। सो दैट्स वाई रेस्टोरेंट के अंदर से इधर आना पड़ता है। और इधर बहुत सारे फॉरेनर्स है, आई मीन 95% इधर फॉरेनर्स ही है और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है वैसे तो, इधर बहुत कम लोग हैं। बट वी आर जस्ट रिलैक्सिंग हियर, खाना खाएंगे, बाबू को खाना खिलाएंगे एंड just chilling here. Let me show you the view. Everyone is just chilling. जीसा का खाना बन गया है, तो ये खाना खा रही है जीसा। वो भी बीच साइड पे, वो भी बीच साइड पे। वाओ, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ मोमेंट शी इज सेविंग राइट नाउ। और क्या, हमको ये पहुंचने में 30 साल लग गए। और बेबी 9 महीने में हुआ। 9 महीने में गोवा में आके बीच पे खा रही है, क्या बात है। सिल्वर स्पून के साथ जन्नी है, लेकिन हम तो स्टील की स्पून के साथ ही खिला रहे हैं। बड़ा लेम जोक। और हमारा भी खाना आ गया है। हमने मंगाया है पनीर और सेफर साइड डाइट कोक मंगाया है। What डाइट शुगर कम हो इसके लिए, बट डाइट कोक के नाम पे ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो हो गया। ओके, सो वी आर एंजॉयिंग द मोमेंट। We are heading to the next destination, next beach. And the one thing I like here is कि इधर ना सब जगह पे रास्ते मतलब बहुत अच्छे से बने हुए हैं। सारे रास्ते इतने क्लियर और अच्छे हैं, मतलब कहीं पे बहुत अंदर से भी रास्ते हैं, बट वो भी इन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन किए बनाए हुए हैं कि लाइक तो अगर आपको लाइक 15 किलोमीटर भी काटना है तो आप लिटरली 15 to 16 मिनट में काट सकते हैं। इतना अच्छे रास्ते हैं। यू कैन क्लियरली सी एटमॉस्फेयर की तो क्या ही बात करें। मतलब धूप आपको ना पूरे दिन में सुबह 11 से 2 के बीच ही धूप लगेगा, फिर धूप है लाइक अभी भी है धूप 3:30 बजे के आसपास, बट उतना नहीं है कि आपको मतलब बहुत ही लगेगा आपको, लाइक सॉफ्ट सनी रेज है। सो हियर वी आर एट अनदर बीच। आई गेस इस ब्लॉग में आप सिर्फ देखने वाले हो बीच को और हमें, दैट्स इट। वी आर हियर एट मजोर्डा बीच एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। और साउथ में ना सारे बीच में मतलब उतने सारे लोग नहीं, बहुत कम लोग हैं, लाइक बहुत मतलब बहुत कम लोग हैं कंपेयर टू नॉर्थ। लेट मी शो यू। हेलो, बस साउथ में आके सिर्फ रिलैक्स करना है ऐसा। गाइस भी ने इधर भी क्रिकेट खेलने का ढूंढ लिया है, देखो इधर भी खेल रहे हैं। इफ यू कैन स्पॉट हिम, peak male content. Here we are at the last place for the day in last beach. It's Varsa beach if I'm not wrong. और ये white sand beach है, but I don't know why they are calling it white sand beach. But और like ये private property के अंदर से है, क्लब महिंद्रा का जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से इधर आना पड़ता है। वेरी 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 लेस क्राउडेड, लाइक लिटरली यू कैन सी इतने ही लोग हैं। जस्ट चिल हियर एंड देन गो बैक टू द होटल एंड दैट्स इट फॉर द डे। हेलो, वी आर रेडी फॉर द डे। और आज बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा जगह पे जाना है, सो आज जल्दी रेडी हो गए हैं एंड gonna start with some beautiful beaches. आज भी ज़्यादा beaches ही है, so let's see how it goes. So here we are at Belolim beach और अभी इधर से बोट राइड किया है, उसमें ये लोग 3-4 जगह घुमाएंगे। So let's see, और डॉल्फिन भी देखने को मिलेगा, होप सो।
दिखने मिले, ये लोग तो बोल रहे हैं, बट लेट्स सी। आई एम एक्साइटेड फॉर द डॉल्फिन, राइट। तो ऐसे पहली बार था वहाँ पे कभी, हाँ डर लग रहा है बट ठीक है, लेट्स गो। कुछ तो एडवेंचरस करना पड़ेगा तभी तो डर जाएगा, ठीक है। और ये देखो कैसे देख रही है मुझे, जैसे कभी देखा है। लेट्स गो। So here we are at Butterfly Beach. पीछे आप जो देख रहे हो वो उसका मतलब शेप ऐसा है बटरफ्लाई के विंग जैसा, that's why they named it Butterfly Beach. It's so small, like इतना ही है, बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे बहुत डीप है तो लाइक नॉट सेफ पानी में जाना। Guys, here we are at Agonda Beach and literally no one, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लाइक कोई भी इधर आना नहीं चाहता है, क्या है पता नहीं, बट इतना शांत है, इतना अच्छा है इधर। अभी इधर लंच करेंगे एंड देन विल हेड टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द डे, Capo di Rama Beach. The perfect sunset. Yeah. जिशा का भी मजा आ गया देख। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टैनिंग, कितना टैन हो गया आज एक ही दिन में। आज इतने दिन तक नहीं हुआ था, वो सारा आज हो गया है, ठीक है। सो इट्स एंड ऑफ द डे एंड हियर टू हैव अ लंच एट फेमस रेस्टोरेंट नवतारा। और हमने यहाँ की लाइक फेमस पतल भाजी है वो ऑर्डर किया है, और पाव भाजी। लेट्स सी क्या होता है, कुछ गोवन डिश है पतल भाजी, लाइक सब्जी और पूरी टाइप्स। सो या अभी डिनर करेंगे और फिर जाएंगे डायरेक्ट होटल और फिर आराम करना है। और अभी कल और परसों का दिन तो लाइक एकदम ही इजी है, कुछ ज़्यादा जगह जाना नहीं है, एक दो जगह दैट्स इट। और सैटरडे को तो चेकआउट है, फिर घर जाना है, तो प्रॉपर घूमने के लिए फिर कल का दिन ही है, तो लेट्स सी। बट कल बहुत ही रिलैक्स रखा है क्योंकि आज बहुत हेक्टिक हो गया, तो कल एक दो ही जगह जाएंगे, ज़्यादा नहीं इस पर। दैट्स इट फॉर द डे। बहुत थक गया आज तो, लिटरली बहुत ड्राइव भी किया और बहुत जगह भी घूमे, बट आज के सारे बीचेस इतने ब्यूटीफुल थे और इतने लाइक शांत थे, बहुत कम लोग के साथ। सो इट वॉज वर्थ जितना भी ड्राइव किया उतना। सो या दैट इज इट फॉर द डे टुडे। Hello guys, so today is probably last day of Goa. Not so, कल भी थोड़ा टाइम है बट आई डोंट थिंक सो घूमने जा पाएंगे। सो टुडे इज़ द लास्ट डे और आज बहुत ही रिलैक्स रखा है। ऑलमोस्ट हम आफ्टरनून में निकले घूमने के लिए क्योंकि अभी इतने दिनों से थक गए थे, तो आज 12 बजे निकले घूमने के लिए। एंड वी आर हियर एट बेसिलिका ऑफ बूम जीसस चर्च, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना है, बट अंदर की साइड पे फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं है, दैट्स वाई कुछ ले नहीं पाएंगे। सो या वी आर हियर राइट नाउ, और इसके बाद एक दो जगह देखेंगे, जाएंगे या फिर क्या करेंगे, बट आज पूरा दिन बस रिलैक्स। This is the last place of our ट्रिप या कल बैक टू द होम एंड द लास्ट बीच मिरामार बीच। अभी बस इधर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और एक ब्यूटीफुल सा सनसेट देखेंगे एंड आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। Hello guys, it is the last day in Goa and right now we हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में to chill for some time. Just gonna chill by the pool and फिर चेक आउट करके स्कूटी वूटी देके फिर एयरपोर्ट जाएंगे। पता last beautiful views of the Goa. we are using now public transport to reach our hotel. Yes. Because
given our Activa. It's now time to use the public transport as well. पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा है वो देखने की बात है। AC वाला 30 रुपीज में 19 एसी किलोमीटर. वाला है। सो गुड। मतलब जाके बैगेज कलेक्ट करके डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे सो दैट कुछ लेट ना हो जाए। दैट्स वाई थोड़ा जल्दी निकल रहे बिकॉज ऑफ बीच में ट्रैफिक भी थोड़ा शायद होगा। So we have reached to the airport and look at the beautiful airport, guys. Airport is itself so beautiful that Goa kitna beautiful hoga, you can imagine. Yep. Hello guys, so it is the end of the trip and I guess so far the best trip we ever had because ये हमारा बेबी के साथ फर्स्ट ट्रिप था and we enjoyed a lot during the trip. नॉर्थ गोवा में बहुत मजे किए, पार्टी वार्टी सब, एंड साउथ गोवा एकदम ही चिल और रिलैक्स था। बट पर्सनली आई लाइक द साउथ गोवा क्योंकि वहाँ के बीचेस बहुत ही क्लीन और बहुत ही काम है। If you want to relax, then you can go to South Goa, and if you want to do a party stuff, then you can go to the like North Goa side. What do you like the most during the trip? मुझे तो ये casino ride अच्छा लगा. अच्छा, कसिनो राइड वो हमारा एकदम इम्प्रॉम्प्टू था। हमने डिनर क्रूज का डिसाइड किया था बट हम कसिनो वाले क्रूज में गए। आई गेस दैट इज द बेस्ट डिसीजन सो फार। सो यू कैन गाइज ऑल्सो कमेंट डाउन योर मेमोरेबल पार्ट फ्रॉम द गोवा इफ यू एवर विजिटेड। So yeah, that is it for this vlog. I hope you guys also enjoyed watching this. Okay, we'll meet you in my next one. Bye.